Hello everyone, welcome to the new ଆଜିର କ୍ଲାସ୍। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେମିତିକି ଆମର 25ରୁ ନ୍ୟୁ ବ୍ୟାଚ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲି। ତ ଆଜି ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ 2027ରେ ଯେଉଁମାନେ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ। ଓକେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲାसटा ଆଜିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଓକେ, ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତୁମର ସିଲାବସ୍ ରହିଛି ଯେମିତିକି ଇଣ୍ଟରନାଲରେ ତୁମର ଆସିବ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ତୁମମାନଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ଯେମିତି ରହିଛି କି ତୁମର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଲାଗି ତୁମର ଯେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ରହିଛି ଭାରତ ଇତିହାସର ଉପାଦାନ, ଯେମିତିକି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ, ସାହିତ୍ୟିକ, ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ, ଅଭିଲେଖାଗାର ଏସବୁ ରହିଛି ତୁମର ୟୁନିଟ୍ 1 ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଟରନାଲ ଲାଗି ରହିଛି। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ୟୁନିଟ୍ରେ ତୁମର ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ରେ କାରଣ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଳଭିତ୍ତି, ଋଗ୍ ବୈଦିକ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ ଏସବୁ ବିଷୟ ରହିଛି। ଥାର୍ଡ଼ ୟୁନିଟ୍ରେ ତୁମର ପ୍ରାଚୀନ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ, ଷୋଡ଼ଶ ମହାଜନପଦ, ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ୟୁନିଟ୍ ଯେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଏସବୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ତୁମର ସିଲାବସ୍ଟା ରହିଛି ପିଲେ। ତ ଆମର ପ୍ରତିଦିନଟା ତୁମର ଡେଲି କ୍ଲାସ୍ ହେବ 5 PM ରୁ 6 PM ଟାଇମ୍ରେ ଏକା ଡେଲି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ହେବ ତୁମର ପ୍ଲେ। ଓକେ, ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି କେତେ ଦିନ ହିଷ୍ଟ୍ରି କରିବା, ତାପରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବା। ଓକେ, ଏଭଳି ଭାବରେ ତୁମର ସିଲାବସ୍ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଭାରତୀୟ ଇତିହାସର ଉପାଦାନ ରହିଛି। ଓକେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବେ, ତା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ସେୟାର କରିବେ। ଓକେ, ଆମେ ଜାଣିବା ଇତିହାସ କ'ଣ ଆଉ ତା'ର କେଉଁ ଉପାଦାନ ରହିଛି। ଇତିହାସ ଉପାଦାନର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କାଣା ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଓକେ, ଇତିହାସ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ଦେଖ ପିଲେ, ସିମ୍ପଲି ଯଦି କହିବା ଇତିହାସ ମାନେ କ'ଣ ନା ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ଘଟି ଯାଇଥିବା ବିଶିଷ୍ଟ ଘଟଣା ମାନ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଇତିହାସ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, ହେରୋଡୋଟସ୍କୁ ଇତିହାସର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ ଇତିହାସର ଜନକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ହେରୋଡୋଟସ୍କୁ। ଓକେ, ଇତିହାସ ହେଉଛି ଅତୀତର ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ। ଓକେ, ଏହାର ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଲିଖନ ପାଇଁ ଉପାଦାନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଉପାଦାନ ବିନା ଇତିହାସ ଲିଖନ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ପାଷ୍ଟରେ ବା ଅତୀତରେ ଅନେକ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ଘଟଣାକୁ ହିଁ ଇତିହାସରେ ରଚନା କରାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ପାଷ୍ଟରେ ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଘଟଣାଟା ଇତିହାସରେ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ଦରକାର ଯଦି ଇତିହାସରେ ରଚନା ହେବା ପାଇଁ। ଓକେ, ତ ଇତିହାସ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଇତିହାସରେ ଲେଖିଥାଉ। ଓକେ, ଆଉ ଇତିହାସର ଅନେକ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ତା'ର ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଉପାଦାନ ଦରକାର। ଓକେ, ଉପାଦାନ ବିନା ଆମେ ଇତିହାସକୁ ରଚନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଉପାଦାନକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ। ଓକେ, କେଉଁ ଉପାଦାନ? ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ ହେଲା, ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ହେଲା, ଅଭିଲେଖାଗାର ଉପାଦାନ ରହିଛି। ଓକେ, ତ ଏଇ 3ଟି ଉପାଦାନକୁ ନେଇକି ଆମର ଇତିହାସଟା ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ତ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ ଦେଖ, ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ମାନେ ପୁରାତନ କାଳରେ ଯେଉଁ ଅବଶେଷ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ମାଟି ତଳେ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ମାଟି ଉପରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ଖୋଦନ କରିଥାଉ, ଭୂଖନନ କରିଥାଉ। ତ ଏଇସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ତଥ୍ୟଟା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥାଏ, ଓକେ, ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ କହିଲେ ପୁରାତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅବଶେଷର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ବୁଝାଏ ଯାହା ମାଟି ଉପରେ ଏବଂ ମାଟି ତଳେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ ବୋଲି। ଓକେ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେମିତିକି ତୁମର ରହିଛି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ ପୁରାତନ କାଳରେ ରହୁଛି। ତାପରେ ତୁମର ବନୱାଲିରେ ଗୋଟେ ଜାଣିଥିବ ଚୁଲି
तापरे प्लग जो काण कुआजे कि तुमर तो सर्वेक्षण और खनन प्रक्रिया द्वारा यह लोकलोचन को आसी थाए यह प्रत्नतात्विक उपादान बोली कहुए। ओके, प्रत्नतात्विक उपादान अच्छी एभली एक उपादान जोटा कि माटी खनन द्वारा लोकलोचन को आसी थाए और सेटा को ऐतिहासिक जो माने प्रत्नतत्वविद मान थांती से माने सेटा को अध्ययन करती आउ सेटा से माने इतिहास रे देखा मिली थाए। प्रत्नतात्विकविद माने से माने उपादान को अध्ययन करेंगे तापर से माने करेंगे। ओके, तो से माने सर्वेक्षण और खनन प्रक्रिया द्वारा यह लोकलोचन को आसी थाए यह को आम प्रत्नतात्विक उपादान बोली कही था। ओके, 1784 मसीह बंगरे एशियाटिक सोसाइटी गोटे प्रतिष्ठा होता बोले वेरी इंपोर्टाट पॉइंट ये मन रख कि एशियाटिक सोसाइटीटा केबे गठित होता 1784 बंग ठारे गठित होता। ओके, तापरे कहुए कि इतिहास रे जो प्रत्नतत्व विभागटा क्या समय स्थापित होता बोले प्रत्नतत्व विभाग एटा थिला तुमर क्या समय एटा कर्जन को समय थिला लॉर्ड कर्जन को समय रे स्थापित होइथिला प्रत्नतत्व विभागटा। ओके, और प्रत्नतात्विक उपादान को 5 प्रकार रही जमती कि तुमर अभिलेख उपादान रहा मुद्रा उपादान रहा कीर्तिस्तंभ कला स्थापत्य प्रत्नतात्विक खनन एभली 5 प्रकार रही तुम प्रत्नतात्विक उपादान। ओके, फास्ट आम जाना अभिलेख उपादान कौन अभिलेख उपादान कौन बोली देख अभिलेख उपादान कहले आम बुझा कि प्रस्तर स्तंभ मंदिर कांथ गुंफा और ताम्र फलक लेखा जाइतिबा प्राचीन लिपि को बुझाए। देखिथिबो तुम जमती खंडगिरी हला उदयगिरी हला तो ये गुंफा रे किछि लिपि मन लेखा जाई थाए। ओके, तापरे ताम्र फलक रे तुम देखिबो सेन भी किछि लिपि लेखा जाइछि तो ये जो लिपिटा लेखा जाइथिला प्रस्तर हो किंबा स्तंभ हो किंबा मंदिर कांथ हो गुंफा ताम्र फलक ए सब लिखे जाइथिबा प्राचीन लिपि को आम कौन कहि थाउ अभिलेख बोली कहा जाए। ओके, बा इनस्क्रिप्शन बोली कहा जाए। ओके, तो यही अध्ययन को पूरा लेखा तत्व बा एपिग्राफी बोली कहा जाए। ओके, कौन कहा जाए एपिग्राफी बोली कहा जाई थाए। बुझेला तुमको क्वेश्चन आसे एपिग्राफी कौन 1 मार्किया क्वेश्चन आसे कि 2 मार्किया क्वेश्चन भी आसे एपिग्राफी कौन तो एपिग्राफी होचे अभिलेखा अध्ययन विद्या को कहा जाए एपिग्राफी। ओके, अभिलेखारे अनेक गुड़े घटना मान प्रतिफलित होता है। ओके, जमती कि राजा मानकर वंशावली है तांकर परिचय तथा शासन काल विषय राज्य जय विषय शासन व्यवस्था धर्म नीति समसामयिक सामाजिक और अर्थनैतिक व्यवस्था उपरे अभिलेखारे आलोकपात करा जाई थाए। ओके, अभिलेखारे सेटा आलोकपात करा जाई थाए बोले। ओके, तापर विभिन्न समय विभिन्न लेखा गुड़िक विभिन्न भाषा लेखा जाए अभिलेखा गुड़िक विभिन्न भाषा रे जमती कि अशोक समय अभिलेखा गुड़िक मुख्यतः ब्राह्मी लिपि रे किंबा खरस्ती रे लेखा जाइथिला ताप सहित ग्रीक रे आरबीय लिपि रे मध्य देखा मिली तुमर अभिलेखा गुड़िक। ओके, प्रशस्ति मानकर राजा मानकर गुणगान करा जाय थाए जो प्रशस्ति मान रही से न कौन होते राजा मान विषय गुणगान करा जाय थाए यही गुणगान सहित राजा मानकर वंश परिचय शासन और राज्य विषय में सूचना मिली थाए। जमती कि उदाहरण दिगला प्रयाग प्रशस्ति बोली प्रयाग प्रशस्ति रही जेटा कि हरिसेणकर पृष्ठपोषक कथार लेखा जाइथिला प्रयाग प्रशस्ति। ओके, प्रयाग प्रशस्ति कहार पृष्ठपोषक लिखा हरिसेणकर समुद्रगुप्त विषय से लेखा जाए। ओके, धौली जौगढ़ है अभिलेखा ये सब हे अशोकंकर शासन नीति उपर सूचना दे था पे यहाँ इंपोर्टाट यहाँ भी जानी थो कि धौली आ जौगढ़ अभिलेखाटा क्या विषय
सूचना दे थाए बोले कौन हम अशोकों विषयटा सूचना दे थाए। ओके धौली कौटे अच्छे जौगड़ कौटे धौली हूँ तुम भुवनेश्वर धौली खंडगिरी ये सब रोचे तापर जौगड़ तो ये सब कौन अशोकों विषय तुम सूचनाटा दे थाए बोली। ओके तापर नेक्स्ट आसला कौन मुद्रा उपादान तापर कौन आस मुद्रा उपादान आहरी अभिलेखा गुड़िक जमी रही हाथी गुंफा अभिलेख आ गोटे मन रखि जमती कि हाथी गुंफा अभिलेख ये कहार थिला खारवेलंकर हाथी गुंफा अभिलेख खारवेलंकर हाथी गुंफा अभिलेख रही तापरे तुम रही लुम्बिनी अभिलेख अशोकंकर लुम्बिनी अभिलेख रही अशोकर कौन रही लुम्बिनी अभिलेख अशोकंकर लुम्बिनी अभिलेख मध्य रही तो ये सब गुड़ाक अभिलेख गुड़ाक रही। ओके तापर आम जाना मुद्रा भारत इतिहास लिखापी मुद्रा थिला एक अन्यतम उपादान। ओके भारत रे इतिहास रचना पाई मुद्रा थिला मध्य अन्य एक उपादान मुद्रा मध्य बहुत इम्पोर्टान्स रही आम जदि से समय मुद्रा को जदि आम अध्ययन करवा जो समय प्रचलित होता है जो राजा समय तो से अनेक गुड़े इनफर्मेशन बा अनेक गुड़े सूचना पाइपर। ओके प्रशासनिक क्षेत्र में निजर दक्षता प्रमाण करने विभिन्न अवसर राजा माने मुद्रा प्रचलन करथांती विनिमयर माध्यम रूपे साधारणतः मुद्रा गुड़िक व्यवहार होता वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र में बणिक मान तथा निगम गुड़िक मुद्रा व्यवहार करते तो मुद्रा गुड़िक अभिलेखर अनेक समय राजनैतिक अवस्था संपर्क सूचना दे थाए। सबुठार प्राचीन मुद्रा क्या कहुए छापा मुद्रा को सबुठार प्राचीन मुद्रा बोली कहुए बोले आ प्राचीन भारत इतिहास जानापी मुद्रार अध्ययनटा जरूरी। ओके आम जदि प्राचीन इतिहास को जाना ताहले मुद्राटा अध्ययन करने बहुत जरूरी अटे। ओके यह सामाजिक राजनैतिक और अर्थनैतिक अवस्था उपरे आलोकपात करथाय बुझिपार यह सामाजिक राजनैतिक अर्थनैतिक विषय रे आलोकपात करथाय कोटा मुद्रा विषय। ओके विभिन्न समय रे राजा माने विभिन्न मुद्रा प्रचलन करथांती जमिति कि इंडो ग्रीक शासन समय मध्य केवल मुद्रा को प्रमुख उपादान भाव में ग्रहण करा इंडो ग्रीक शासन समय मध्य केवल मुद्रा को इम्पोर्टान्स भाव में ग्रहण करा भारत में अनेक रोमियो मुद्रा देखा मिलती रोमी भारत में अनेक गुड़े रोम रो मुद्रा देखा मिलता है कारण ए जना जाए कि भारत और रोमियो भितर जो संपर्क रही व्यावसायिक वाणिज्यर संपर्क रही देखा मिलता है। ओके भारत में अनेक रोमियो मुद्रा देखा मिली जहाँकि भारत और रोम मध्य व्यावसायिक संपर्क विषय व्यावसायिक सूचनाता दे थाए। ओके प्रथम चंद्रगुप्त समय राजा राणी मुद्राटा प्रचलित होता है वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट कि राजा राणी मुद्रा कहा समय प्रचलित होता राजा राणी मुद्रा होता प्रथम चंद्रगुप्त समय कौन होता राजा राणी मुद्राटा प्रचलित होता। ओके ए चंद्रगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त राजा प्रथम चंद्रगुप्त और तांकर राणी कुमारी देवी छवि रही। ओके आउ समुद्रगुप्तर गोटे मुद्रा रही जो कि वीणा बादनटा चित्र देखा मिलता है। क्वेश्चन आसे वीणा बादन चित्र देखा मिले कौ मुद्रा रे समुद्रगुप्त मुद्रा रे। ओके समुद्रगुप्त मुद्रा रे वीणा बादन चित्र देखा मिलता है। तापर ए जाना कीर्ति स्तंभ बुझिपार तुम गला अभिलेखा तापर अभिलेखा पर मुद्रा मुद्रा पर अब कौन जाना कीर्ति स्तंभ। ओके विभिन्न वंशर राजा माने सेमानक ऐतिहासिक कीर्ति स्तंभ मान स्थापन करछन्ति विभिन्न वंशर राजा माने तांकर किछि कीर्ति स्तंभ स्थापन करछन्ति जेमति अशोकଙ୍କ समय कीर्ति स्तंभ मानक मध्यरु सारनाथ कीर्ति स्तंभ हला शीर्ष भाग आम जातीय चिन्ह रही से मध्ययुगीय कीर्ति स्तंभ गुड़िक मध्यरु चित्तोरथ कीर्ति स्तंभ। ओके अशोकଙ୍କ समय जेमति सारनाथ कीर्ति स्तंभ रहला से मध्ययुग स्तंभ गुड़ी मध्य चित्तोर कीर्ति स्तंभ है दिल्ली कुतुब मीनार है
देवगिरीर चांदमीरा है प्रभृति कण एटा उल्लेखयोग्य है। ओके, यही कीर्ति स्तंभ गुड़िक द्वारा कौन होता है ना प्राचीन धर्म विषय सामाजिक जीवन और स्थापत्य विषय जना जाइए बोली। ओके, तापर आसला कला और स्थापत्य। इतिहास सहित कला और स्थापत्य अंगांगी भाव में जड़ित होता है। ओके, इतिहास सहित कला और स्थापत्यटा अंगांगी भाव में जड़ित होता है। हरप्पा सभ्यतार नगर गठन प्रणाली हो कि मध्य गृह निर्माण शैली हो, मोहेंजोदारोर बृहत स्नानगृह हो इत्यादि से द्वारा सामाजिक जीवन में अध्ययन संभव होइछि। स्तूप विहारर चैत्य गृह बौद्ध धर्म विकास सूचना देते हैं। एगुड़िक मध्य बौद्ध स्थापत्यर निदर्शन अटे। ओके, तो ये सब कौन गोटे गोटे कला बा स्थापत्य बृहत स्नानगृह है कि मोहेंजोदारोर, तापर चैत्य गृह है बौद्ध धर्मर, तो ये सब कौन बिहारर चैत्य गृह है बौद्ध धर्म, तापर स्तूप है ये सब कौन ये गोटे कला और स्थापत्य एगुड़िक मध्य स्थापत्यर निदर्शन अटे। तो मध्य प्रदेश सांची थिबा स्तूप एक प्रधान कीर्तिस्तंभ रही। सांची रे थिबा स्तूप सेपरी प्राचीन भारत में अनेक स्थान में मंदिर मान गढ़ी उठी। प्राचीन भारत में अनेक गुड़ी स्थान मानक मंदिर मध्य देखा मिलता जमीक तुम दि जाए तिगुआर विष्णु मंदिर, तिगुआर ठारे को मंदिर देखा मिले विष्णु मंदिर पिले। तापर देवगढ़ ठारे दशावतार मंदिर देखा मिले, देवगढ़ ठारे को मंदिर दशावतार मंदिर। नाचन कुथर ठारे शिव मंदिर देखा पाते, नाचन कुथर ठारे को मंदिर देखा मिले शिव मंदिरटा देखा मिलता है। से बोली जाभा और काम्बोडिया प्रकांड मंदिर भारत में संस्कृत उपर आलोकपात करें। ओके, तो मान को क्वेश्चन आसे कि तिगुआर विष्णु मंदिर कौ जगह देखा मिलते, तिगुआर ठारे विष्णु मंदिर देखा मिले। तापर दशावतार मंदिर कौ ठारे देवगढ़ ठारे दशावतार मंदिर देखा मिलता है। तापर शिव मंदिरटा कौ ठारे नाचन कुथर ठारे शिव मंदिर देखा मिलता है। ये तीन टा पॉइंटा मन रख, विष्णु मंदिर, दशावतार मंदिर आउ शिव मंदिर। ओके, विष्णु मंदिर तुम तिगुआर ठारे, नाच कुथन ठारे तुम शिव मंदिर आउ देवगढ़ ठारे दशावतार मंदिर देखा मिलता है। ओके, ऐतिहासिक जुगरे गुंफा कांथरे विभिन्न प्रकार चित्रकला देखा मिले। इतिहास युग को जब देखा तेरे गुंफा मानक विभिन्न प्रकार चित्रकला देखा मिले। मध्य प्रदेश भीमभेटका एक उल्लेखनीय गुंफा कला परिलक्षित होता है। भीमभेटका को देखा मिले मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश रे भीमभेटका एक चित्रकला देखा मिले जोटा कि बहुत सुंदर भाव में अच्छे। हरप्पा सभ्यतार विभिन्न वस्तु कलार प्रतिफलित होइछि। सांची है, सारनाथ है, ललितगिरी है, रत्नगिरी है और उदयगिरी है बौद्ध कला और स्थापत्यर निदर्शन देखा मिलता है। ओके, कौ जगह जमी सांची, सारनाथ, ललितगिरी, रत्नगिरी और उदयगिरी ठारे बौद्ध कला और स्थापत्यर निदर्शन देखा मिलता है। ओके, तापर भुवनेश्वर निकटस्थ जमी खंडगिरी है, उदयगिरी है, तापर कर्णाटकर श्रावण बेलगुला ठारे है, महाराष्ट्र एलोरा, राजस्थान दिलवारा प्रभृति स्थान में जैन कलाकृति देखा मिलता है। तो मानक एमती भी क्वेश्चन आसे कि जमी सांची, सारनाथ, ललितगिरी, रत्नगिरी और उदयगिरी रे कौ धर्मर स्थापत्य कला और स्थापत्य देखा मिलता है। कौ धर्म? बौद्ध धर्मर। सेपरी जैन धर्मर स्थापत्य कौ जगह मिलता है जमीक तुम है भुवनेश्वर निकटस्थ खंडगिरी है, उदयगिरी है, श्रावण बेलगुला ठारे है, महाराष्ट्र एलोरा है, राजस्थान दिलवार है प्रभृति स्थान में जैन कलाकृति देखा मिलता है। ओके, एतद व्यतीत मंदिर निर्माण मुख्यतः उत्तर भारतीय, मध्य भारतीय, दक्षिण भारतीय और कलिंग शैली रे परिलक्षित होता है। जो मंदिर माने निर्मित होइछे सेटा मुख्यतः उत्तर भारतीय रे किंबा मध्य भारतीय किंबा दक्षिण भारतीय कलिंग शैलीर प्रभृति रे देखा मिलता है। मंदिर मुख्यतः देवादेवी, मंदिर कांथरे थिबा विभिन्न मूर्ति, सेमानकर परिधान परिपाटे भारतीय कलार एक निखुण परिप्रकाश। तेणु कला और स्थापत्य नीरवरे कीर्तिराजीर गाथा को वर्णना करि थाए। ओके, तापर आसला प्रत्नतात्विक खनन। अनेक स्थान रे खनन प्रक्रिया द्वारा माटी तलु विभिन्न प्रकारर प्राचीन द्रव्यमान दृश्य होता है।
ବା ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଓକେ, କେବଳ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ଦ୍ୱାରା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର କେତେକ ସହର ଆବିଷ୍କାର ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଶିଶୁପାଲଗଡ଼ଠାରେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆମର ଶିଶୁପାଲଗଡ଼ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖରେ, ସେଠାରେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟତା ମିଳିଥାଏ, ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଖନନ ଦ୍ୱାରା ସହରର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ହେଲା, ମୃତ୍ପାତ୍ର ହେଲା, ମୁଦ୍ରା ହେଲା, ଅଲଙ୍କାର ହେଲା, ମୋହର ହେଲା, ନାନା ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଓକେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଇତିହାସ ନାନା ଦିଗରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଏଭଳି ଭାବରେ ତୁମର ରହିଛି, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ତୁମର ଗଲା ପ୍ରଥମେ ଅଭିଲେଖା ଗଲା, ସେକେଣ୍ଡରେ ମୁଦ୍ରା ଗଲା, ଥାର୍ଡ଼ରେ ତୁମର କଲା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଗଲା, ଫୋର୍ରେ ହେଲା ତୁମର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ଗଲା। ଓକେ, ତାପରେ ଫାଇଭ୍ରେ ତୁମର କ'ଣ ଆସିଲା, ତୁମର ଫାଇଭ୍ରେ ଆସିଲା କଲା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ମୁଦ୍ରା ଉପାଦାନ, ଅଭିଲେଖା, ଏସବୁ ଆମେ ତୁମର ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସି ପିଲେ ତୁମର 7 या 7.5 ମାର୍କର ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆସେ। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ ବିଷୟରେ ଲେଖ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ତ ଏଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯଦି ତୁମେ ଲେଖିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ହେବ, ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ସରେ ଭଲ ହେବ। ଓକେ, 3ଟା ଉପାଦାନ ଭିତରୁ ଆମେ ଆଜି ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ। ଓକେ, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଅଭିଲେଖାଗାରୀୟ ଉପାଦାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଓକେ, ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ ବିଷୟରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।